Hello students, after this video you will be able to know about adaptation and habitat, biotic and abiotic component of the environment, adaptation in desert area, adaptation in mountain region. So let us move forward what this video contains. So first of all we are discussing about here uh, that introduction. So different regions in the world have various type of living creatures called organism. Even the opening of volcanoes have tiny living organism. Even our homes are not devoid of these tiny organisms. List some of tiny organism which you have encountered at home. So as we have written here, key there are many types of thousand types of organisms in our surrounding. They are found everywhere. Each and everywhere we can see any kind of organism. Organism means a living creature. ठीक है, कोई भी living being. It can be a microorganism, it can be a bacteria, it can be a insect, it can be a dog, cat, anything. So the organisms are present everywhere in our surrounding. Even if we open the drawer of our home, of the cupboard of our home, we can see a tiny spider there, or we can see some cockroaches. तो ये है कि there is no one place which is devoid of these organisms. Means organisms are present everywhere. So you can list some of the organisms which you have seen in your home. Make it. Then we comes to the next topic, environment. What is environment? Environment is our surrounding. Simply, what is environment? The place which is surrounded us. वो जगह जो हमें चारों तरफ से घेरे रहती है. So everything that we see surrounding us is called our environment. It includes living and both non-living. Both types of things is called as environment. Just see what we can see living is the persons, the animals surrounding us is considered under the living object. और द प्लांट्स ऑल्सो. ठीक है, सो प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग में आते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो लिविंग बींग्स हैं. एंड व्हाट वी कंसिडर इन नॉन लिविंग, द टेबल, द वॉल, बैट एंड यूटेंसिल्स एट द होम एंड द अदर थिंग्स विच आर नॉन लिविंग इन आर सराउंडिंग इज कॉल्ड नॉन लिविंग. सो बोथ कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द एनवायरनमेंट इन आर सराउंडिंग. ओके, तो ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरनमेंट बनाने के लिए. यदि हम डिस्कस करें तो एनवायरनमेंट में दो तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं. एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. दे आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स ऑल द लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग comes under the biotic components. All the living beings means all the animals which we can see in our surrounding and all the plants which we can see in our surrounding are comes under biotic components. Okay, so the second one is abiotic component. So the non-living component of the ecosystem like soil, water, temperature, humidity, rainfall, these all comes under the एबायोटिक कंपोनेंट्स. सो इसके अलावा जो भी हमारी मतलब ज़िंदगी को ज़िंदा रखने के लिए और भी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमारे चारों तरफ होती हैं और जो नॉन लिविंग है, जैसे कि आपकी मिट्टी है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी की सारी हमारे सराउंडिंग में होती है. ये जो है एनवायरनमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स में आती है बिकॉज दे आर नॉन लिविंग. ओके, और एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे. इसके बाद हम आगे चलते हैं. सो हम पढ़ रहे थे अडेप्टेशन और हैबिटेट. तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट इज़ अ हैबिटेट. हैबिटेट इज़ अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. वो जगह है जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट. इन इंग्लिश द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. ओके,
So habitat fulfill all the requirement of an organism, whether it is food, whether it is shelter and other needs of any organism. तो habitat वो place है जहाँ पर कोई भी organism रहता है, कोई भी जीव रहता है और जहाँ से उसकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि है खाना और घर और प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर एनिमल्स दे कम्स अंडर इट्स हैबिटेट. ठीक है, जैसे हम हैबिटेट की बात करें तो ग्रासलैंड या अपना गार्डन ही देख लें घर का, तो गार्डन में हम कई तरह के एनिमल्स को देख लेंगे जो वहाँ पर रोज़ पाए जाते हैं. बटरफ्लाइज हैं, ग्रास होपर्स हैं, ठीक है, तरह तरह के इंसेक्ट हैं, प्लांट्स हैं. सो दे आर द हैबिटेट ऑफ दीज ऑल लिविंग बीइंग. ओके, ये वहाँ का जो है उन सभी चीज़ों का हैबिटेट कहलाएगा. उसी तरह से हम फिश की बात करें, फिश कहाँ रहती है भाई? पानी में रहती है. तो जो वाटर है दैट इज़ द हैबिटेट ऑफ फिश. तो इस तरह से हैबिटेट हम सिंपल लैंग्वेज में कहें घर, किसी का घर. ठीक है, सो हैबिटेट इज़ द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. इसके बाद जो दूसरा वर्ड आता है एडेप्टेशन, जो कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं या वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं या वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में बहुत अच्छी तरह से रह पाता है, उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन. विदाउट एडेप्टेशन द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट पॉसिबल. बिना एडेप्टेशन के किसी भी जीव जंतु का बहुत दिनों तक सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बस सिंपल सा बताती हूँ कि यदि हम फ़िश को यदि पानी से निकालें, हम बचपन से कविता पढ़ते आए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. तो जो फ़िश का जो एक्चुअली में हैबिटेट है दैट इज़ वाटर. यदि हम फ़िश को यदि बाहर निकाल दें पानी से तो थोड़ी देर बाद वो मर जाती है. उसी तरह से यदि हमें पानी के अंदर जाना है तो आपने देखा होगा कि हम ऑक्सीजन, जो स्विमर्स होते हैं दे यूज़ ऑक्सीजन सिलेंडर एंड फ्लिपर्स, है ना. तो वो भी अपने साथ कुछ ऐसे इक्विपमेंट लेके जाते हैं जिससे कि वो स्विम कर सकें उसमें पानी के अंदर आसानी से कुछ समय के लिए रह सकें. उसी तरह से हम और भी देखें, जो कैमल है, आपने देखा ही होगा कैमल, उसमें उसकी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों है, उसके बड़े बड़े पैर क्यों हैं, बड़ी बड़ी गर्दन क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो लॉयन के जैसा क्यों नहीं है, या लॉयन कैमल के जैसा क्यों नहीं है. इन योर क्लास थर्ड, जब आप क्लास थर्ड में थे वहाँ पर आपने एक चैप्टर पढ़ा था द शिप ऑफ द डेजर्ट, इंग्लिश का चैप्टर है. तो वहाँ पर आपको याद हो द कन्वर्सेशन ऑफ लॉयन एंड कैमल. वहाँ पर दो लोगों का कन्वर्सेशन दिखाया था उस चैप्टर में, लॉयन और कैमल का, और उसमें ये बताया था कि लॉयन जो है वाई इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द वाई कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. तो लॉयन जो कि जंगल का राजा है वो इन डेजर्ट एरियाज इट बिकम्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ कैमल. कैमल के सामने वो कुछ भी नहीं था. कहाँ पर? डेजर्ट एरिया में. जबकि शेर जो है वो जो खुद आप जंगल का राजा है, लेकिन रेगिस्तान में यदि शेर चला जाए तो उसमें दम ही नहीं है. तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं? सो एडेप्टेशन मीन्स टू द हैबिट्स एंड एडेप्टेशन को यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं द मोडिफिकेशन इन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म एंड देयर लिविंग हैबिट्स अकॉर्डिंग टू इट्स हैबिटेट फॉर अ बेटर सर्वाइवल इज़ नोन एज एडेप्टेशन. तो किसी जीव में जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं या उसके लिविंग की जो हैबिट्स हैं अपने हैबिटेट के हिसाब से जो उसको बेटर जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं. ठीक है, तो आप सिंपल सा है, यदि कोई स्पाइडर है वो एक एरिया में बहुत ज़्यादा हीट है, वहाँ पर यदि वो ज़िंदा नहीं रह पा रही है तो मतलब वो अडेप्ट नहीं कर पा रही उस चीज़ को. तो बिना एडेप्टेशन के आप किसी भी एनिमल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेटर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. और समटाइम्स यदि एडेप्टेशन नहीं है तो दे कैन ऑल्सो डाई. तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशन इन डेजर्ट एरिया. सो डेजर्ट आपको सबको पता है, द प्लेस वेयर देयर इज़ वेरी low rainfall, where is very low vegetations, है ना. the soil is sandy and it becomes very hot all over the year. तो हम एक कॉमन कैरेक्टर यदि देखें डेजर्ट का तो क्या होता है कि वहाँ पर बहुत कम बरसात होती है और बहुत ही कम जो है वहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं. बहुत ही कम जो है वहाँ पर आपको ग्रीनरी दिखाई देगी. जो मिट्टी है वो आपकी सैंडी होगी, मतलब रेतीली मिट्टी होगी, और
यदि हम एक एवरेज की बात करें तो पूरे साल वहाँ पर हमें जो है वो हॉट वेदर वहाँ का होता है। इसके साथ ही जो आपके जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कटीले होते हैं, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। तो जैसे जो इसमें ही सहारा डेजर्ट है जो वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट विच इज़ फाउंड इन अफ्रीकन कंटिनेंट, जो कि अफ्रीका के कंटिनेंट में पाया जाता है। उसी तरह से हम इंडिया की बात करें तो द थार मरुस्थल इन इंडिया फाउंड इन रेगिस्तान जो आपका है स्टेट राजस्थान स्टेट में आपका जो थार मरुस्थल है वो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डेजर्ट के। तो यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स एंड द प्लांट्स फाउंड इन आर एरिया। जो हमारे एरिया में जो प्लांट्स है जैसे मैंगो ट्री है, बनियान ट्री है, इसके अलावा तरह तरह के फ्लोरल प्लांट्स है, ये दे टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट एरिया। सो डेजर्ट एरिया में ऐसा क्या है कि वहाँ पर ये अलग तरीके से मिलते हैं और उन्होंने किस तरह से अपने आप में एडेप्टेशन लाए हैं। तो चलो हम इसको अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे snakes and rats dig burrow to escape intense heat as they don't have long legs such as camel. These animals come out only during the night when it is cooler. तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स की बात हो रही है जैसे कि रूडेंट्स हैं, जो आपके रैट हैं या फिर जो स्नेक्स हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपली ब्यूरो को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब जो ब्यूरो उनका जो घर होता है, आपको पता होगा, बिल जो बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर, बहुत ज़्यादा गहराई में बनाते हैं। उसका कारण ये है कि दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हीट विच इज़ ड्यूरिंग द डे टाइम इट्स वेरी हॉट इन द डेजर्ट एरियाज। सो टू एस्केप फ्रॉम दिस हीट दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय मेकिंग अ डीप ब्यूरो। अपने आप को इस गर्मी से बचाने के लिए बहुत गहराई में ये क्या बनाते हैं, अपना बिल बनाते हैं ताकि प्रोटेक्ट रहें। एंड दे कम्स ओनली एट द नाइट, दे कम आउटसाइड ओनली द नाइट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज टू एस्केप दिस हीट। बिकॉज रात में क्या है, टेम्परेचर फॉल हो जाता है, डाउन हो जाता है, वहाँ पे थोड़ी ठंडक आ जाती है, तो ये रात के समय ही शिकार करने के लिए, मतलब अपना भोजन ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है कि दिन के समय इनको अपने घर में ही रहना है, जो कि बहुत ज़्यादा गहराई में बना होता है, और प्रोटेक्ट रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है सनलाइट से, और रात के समय जब ठंडा हो जाता है तब ये बाहर निकलते हैं। इसके साथ यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स, leaves are reduced to spines and lose little water through transpiration. If you remember the process of transpiration, it means the removing of water from the upper surface of leaf of the plant is called transpiration by sunlight. तो दिन के समय जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, आपने देखा होगा, यदि हम कुछ पौधों में, बड़े नाजुक से पौधे होते हैं, कुछ पौधों में यदि पानी ना दें तो क्या होता है, उनकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, और जैसे हम उनको पानी दे देते हैं वो वापस से अपनी इनिशियल जो पोजीशन है उसमें आ जाती हैं। तो होता क्या है कि दिन के समय ये जो पत्तियों में जो स्मॉल पोर्स होते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग जो होती हैं, उनके माध्यम से जो पानी है हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो चूँकि डेजर्ट एरिया में पानी वैसे ही कम है, वहाँ पर पानी नहीं है उतना ज़्यादा, तो जो ट्रीज़ हैं जिनको कि सर्वाइव करना है, तो सर्वाइव करने के लिए वो अपने अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको प्रोटेक्ट कैसे रखेंगे। तो उसको प्रोटेक्ट रखने का इन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाला है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि रेगिस्तान में बहुत सारे कटीले पेड़ होते हैं। तो क्यों होते हैं, तो वहाँ पर ये कि ये प्लांट्स जो हैं अपनी लीव्स को कांटों में मॉडिफाई कर देती हैं। मतलब जो लीव्स प्लांट की होती हैं वो लीव्स ना होकर क्या बन जाती है, कांटे बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कांटे होते हैं। तो कांटे आपने देखे होंगे, जो स्पाइंस होते हैं बड़े ही कड़क होते हैं और जल्दी से हमें प्रिक हो जाते हैं, जैसे हम उसको छुएंगे हमें चुभ जाते हैं। तो ये हार्ड जो इनकी कवरिंग है, इस वजह से इनके अंदर जो वाटर है उसका ट्रांसपिरेशन बाहर नहीं हो पाता। सो दे प्रोटेक्ट द वाटर कंटेंट in them. They protect the water content in them by converting their leaves into the spines. तो उनकी जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई, जिस वजह से जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है एंड दे कैन प्रिजर्व द वाटर कंटेंट इनसाइड देम। अब इसके बाद क्या है दूसरा, द स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट्स हैव वैक्सी कोटिंग ऑन देम एंड इन मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय द स्टेम। फर्दर जब हम आगे वीडियो में जाएंगे तो आपको एक पिक दिखेगा कैक्टस का, और कैक्टस आपने देखा हुआ है, बड़ा इसको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी रखते हैं, मतलब डेकोरेटिव प्लांट में भी आता है ये, घर को सजाने में, घर हम इसको अंदर भी रख सकते हैं। तो हमने देखा है कि कैक्टस जो है वो
अजीब सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें बिल्कुल हाथ के कभी गोल गोल कभी कुछ अजीब अजीब से, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैक्टस। तो हमने देखा कटीला होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो ग्रीन कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज़ नॉट लीफ, दैट इज़ द स्टेम ऑफ द कैक्टस। वो क्या है, कैक्टस का स्टेम है, एंड बिकॉज इट इज़ ग्रीन इन कलर सो इट कैरीज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस। अब कैक्टस में जो फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस जो है वो लीव्स ना करके कौन करता है, स्टेम करता है, क्योंकि स्टेम ग्रीन कलर का, इट मीन्स द स्टेम कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपका स्टेम है उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जा रहा है, क्लोरोफिल, और इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द ग्रीन पिगमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसमें जो है जिसके बाय मीन दे प्रोड्यूस देयर फूड, okay, by mean the plant produce their food, the process by mean the plant produce their food is called photosynthesis during the daytime. तो ये जो इसमें photosynthesis का जो process है it is carried out by the stem because it is green in color, because the chlorophyll is found only in stem, so they perform the activity of photosynthesis, not the leaves, because leaves are converted into spines. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा देयर रूट्स गो डीप इनटू द सॉइल सो टू एब्जॉर्ब वाटर। अब चूंकि यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा कम है, इनको पानी चाहिए, और सैंडी सॉइल है, तो ये इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा अंदर ज़मीन में जाती हैं ताकि उनको वो पानी को सर्च कर सकें सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि वाटर बहुत ज़रूरी है। सो इन प्लांट्स की रूट्स ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती हैं टू इन सर्च ऑफ वाटर। The leaf in desert plants are absent to prevent loss of water due to transpiration. तो कई बार क्या होता है इन पौधों में लीव्स कई बार एब्सेंट भी होती हैं, एक तो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं और कुछ में लीव्स होती ही नहीं है ताकि वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो ना हो सके। तो इस तरह से डेजर्ट एरियाज़ में हम प्लांट्स की बात करें तो हमने देखा कि एक तो यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं, मतलब कांटेदार पौधे होते हैं, क्योंकि इनमें जो कांटे होते हैं एक्चुअली दे आर लीव्स जो कि मॉडिफाई हो चुकी हैं, और जो स्टेम है दे परफॉर्म द process of photosynthesis because it contains chlorophyll, it is green in color, the roots go deep inside the soil in search of water. So ये हो गया adaptation in desert area. चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। सो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं द पिक्चर ऑफ कैक्टस एंड द पिक्चर ऑफ कैमल, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। कैमल के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, और यहाँ पर हमने डिस्कस जो किया है वो कैक्टस के बारे में। तो आप आसानी से देख सकते हैं द थॉर्न्स ऑन द स्टेम, दिस थॉर्न आर एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स एंड स्टेम इन ग्रीन इन कलर विच कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमारा जो अगला है दैट इज mountain regions, adaptation in mountain region. So the mountain region is totally different from the desert area. Mountain region चूँकि आपको पता है it is high at point and contains many types of vegetations, many kinds of animals are present here. So what types of adaptations are found in these organisms? Let us see. First, the trees are cone shaped with slope like branches, also needle like leaves are present so that rain and snow slide off them easily. सबसे पहले ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो ट्रीज होती हैं दे आर कोनिकल इन शेप। जैसे कि आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, क्रिसमस ट्री का जो यदि हम शेप देखें ऑब्जर्व करें तो वो कोनिकल शेप का होता है, और उसकी जो लीव्स हैं वो भी डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो है वो झुकी हुई होती हैं। उसी तरह से आप पाइन्स ट्री ले लीजिए, अभी आगे जो है स्लाइड में उनकी पिक्स भी हैं, तो आप देखिए इस तरह के जो पेड़ होते हैं मोस्टली फाउंड इन माउंटेन रीजन। कारण क्या है, वहाँ पर माउंटेन रीजन में जब हम हाई ऊपर मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। टेम्परेचर उस तरह से नहीं होता जो कि ग्रासलैंड एरिया में है या डेजर्ट एरिया में है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से या बहुत ज़्यादा कई बार हवा चलने से, कई बार बारिश बहुत बार होने से और स्नोफॉल होने से यहाँ पर इन पेड़ों को सर्वाइव करने के लिए कुछ तो एडेप्टेशन करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट एडेप्टेशन दे आर कॉनिकल इन शेप, और इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक, मतलब जैसे कि सुई होती है ना वैसी ही होती हैं। उसका कारण क्या है, ताकि जो रेन उसके ऊपर गिर रही है या स्नो उनके ऊपर जो फॉल हो रही है वो आसानी से स्लाइड डाउन हो जाए, वो उनके ऊपर जमा ना रहे, वो खिसक कर कहाँ आ जाए, ज़मीन पर आ जाए, ताकि वो जो है वो गले ना, वो सड़े ना, बच जाएं उस बारिश से और उस ठंड से। उसके बाद दूसरा है एनिमल्स हैव थिक फर
विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, स्नो लेपर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं दे हैव थिक फर, इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा है जो है वो मोटे मोटे, एक तो इनकी स्किन्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, मोटी होती है। दूसरा इनके ऊपर फर मतलब इनके जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे और घने होते हैं। ये दे फर जो है ये प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, ये जो इनका फर है ये इनको ठंड से बचाता है। जैसे आपने भी देखा होगा, आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं, कंबल ओढ़ते हैं या कोई वूलन चीज़ पहनते हैं। तो एक्चुअली ये जो वूलन चीज़ें, वूलन जो क्लोथ्स हैं ये कहाँ से बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर्स कॉल्ड वूल। और आपने देखो कंबल भी मोटे मोटे होते हैं तो हम ठंड से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। उसी तरह से ये जो फर इनका जो है, इनके एनिमल्स को हम कई बार रियर भी करते हैं फॉर देयर फर। तो ये जो फर है ये इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द कोल्ड, उस ठंड से बचने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया स्नो लेपर्ड का। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हूफ्स हेल्प द माउंटेन गोट टू रन ऑन द रॉकी स्लोप। तो इनके जो पैर होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा एडेप्ट होते हैं ताकि वो आसानी से जो है वो स्नो रीजन में चल सकें। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, जैसे पाइन्स, माउंटेन गोट, याक, शीप एक्सेट्रा। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं द एनिमल्स विच आर फाउंड इन माउंटेन रीजन। याक का आपने नाम सुना होगा, बचपन से ABCD पढ़ते हैं ना। तो याक जो है द एनिमल विच इज़ फाउंड इन the mountain region having a long hair over their body to protect them from the cold. उसी तरह से mountain goat है, pine is an example of a tree. इसमें देखिए ये लिखा है yaks have long hair to keep them warm. So in this picture you can see the picture of a snow leopard and the picture of a pine tree. आप देख सकते हैं किस तरह से इसका शेप कॉनिकल है और इनकी लीव्स जो है वो नीडल इन शेप होती है। So in this video we have learned about the adaptation, habitat, environment, the factors of environment, adaptation in desert areas and adaptation in mountain region. तो ये सब हमने डिस्कस किया है। If you understand all these, so you will be able to answer now the following question. Give two examples of different habitats of animals. You can give it. Next question is, what do you mean by habitat? Non-living things such as soil, water, air are what components? Abiotic components. What are the biotic components of environment? You will answer it. Flora and fauna of any environment is called its biotic components. What types of leaves are present in desert plants? They are present, they are modified into spines. तो आप इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।